Hello, class 7th. Today we are going to start new chapter in history, that is tribes, nomads and settled communities. You saw in chapter 2 and 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Kingdoms means kings were ruling over their maximum parts of the country. Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. कहीं किंगडम्स राइज कर रही थी, ओके, और टाउन्स और विलेजेस में जो आर्ट क्राफ्ट इनकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश हो रही थी. बट political, social and economic developments also had taken place at all the places. And one important thing that social change was not the same everywhere. ऐसा नहीं है कि कहीं किंगडम राइज हो रही थी तो वहाँ किंगडम ही राइज कि सब जगह किंगडम ही राइज हुई, या ऐसा नहीं था कि आर्ट और क्राफ्ट हर जगह वहाँ पे फ्लरिश हो रही थी. कुछ पार्ट्स में आर्ट और क्राफ्ट फ्लरिश हो रही थी, कुछ पार्ट में किंगडम्स आपस में फाइट कर रहे थे. ठीक है, तो सोशल या सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे थे वो सब जगह सेम नहीं थे, बिकॉज different kinds of society evolved differently. It is important to understand how and why this happened. In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. Four Varnas were there. There were four Varnas in society. So first was Brahmanas. Then second was Kshatriya. Third was Vaishya. And fourth was Shudra. So Brahmanas were the people, those who used to all kinds of pujas and all. Kshatriyas were those who used to fight in war. Okay. Then Vaishya means all traders, vyapari jisko bolte hain. And Shudras, people those who were doing all low category jobs. So in this way, society was divided into four varnas. Okay, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. These were four varnas in society. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdoms. क्योंकि जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो भी किसकी बात मानते थे? ब्राह्मण्स की. ब्राह्मण्स जो भी पूजा करवाते थे या जो भी उनको रूल बताते थे तो वो उसको फॉलो करते थे. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज्ड अंडर द दिल्ली सल्तनत and the Mughals. This hierarchy between social classes grew further, but slowly all distance between all the social classes grew. ठीक है, जो रिच थे वो और रिच होते गए, जो पुअर थे वो और पुअर होते गए. हाई क्लास सोसाइटी के लोग हमेशा हाई ही रहे, है ना, और लो क्लास सोसाइटी की जो हालत थी वो हमेशा लो ही रही. वो कभी भी फ्लरिश नहीं कर पाए या वो कभी भी रिच नहीं हो पाए. बियॉन्ड बिग सिटीज़, tribal societies. Now let us discuss some tribal societies which developed in India beyond all these big cities. There were, however, other kinds of societies, as well as many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by Brahmanas. Okay, some followed, by all did not follow rules prescribed by Brahmanas. Nor were they divided into numerous unequal classes. Such societies are often called tribes. और वहाँ पे बहुत अनइक्वल क्लासेस नहीं थी. वो ट्राइब्स में सब लोग जो थे वो सेम ही कैटेगरी से बिलोंग करते थे. वो ट्राइब्स ही थे, आदिवासी. ओके, मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स. वो जो ब्लड रिलेशन से वो यूनाइटेड वो थे, ब्लड रिलेशन से वो आपस में एक दूसरे से बंधे हुए होते थे. Many tribes obtained their livelihood from agriculture. Others were hunter-gatherers or herders. Most often, they combined these activities to make full use of the natural resources of the area in which they lived. बहुत सारे इसमें एग्रीकल्चर से अपनी लाइवलीहुड वो अर्न करते थे. ठीक है, कुछ जो थे वो हंटर गैदरर्स थे या हर्डर्स थे जो एनिमल्स रखते थे. मोस्ट ऑफन दे कम्बाइंड दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. और कुछ एग्रीकल्चर भी करते थे, वो हंटर गैदरर्स का भी काम करते थे, हर्डर्स भी थे, सारे ही काम वो एक साथ करते थे. Some tribes were nomadic and moved from one place to another. Nomadic means the people those who used to move from one place to another. ठीक है, जैसे जो कास्ट एक जगह वो टिक कर नहीं रहती हैं, वो एक से दूसरी प्लेस पे वो घूमती रहती हैं. A tribal group controlled land and pastures jointly.
तो जो ट्राइबल ग्रुप थे वो उन्होंने लैंड और पास्चर्स में जो फील्ड्स थे, पास्चर्स मीन्स जो चारागाह होते हैं बेसिकली, जहाँ पे एनिमल्स के लिए उनको जो ग्रीन ग्रास वगैरह खिलाई जाती है. ओके, सो दे कंट्रोल्ड, the tribal group controlled it and divided these amongst household according to its own rules. और उन्होंने अपने ही रूल वहाँ पे बना लिए. Many large tribes thrived in different parts of the subcontinents. They usually lived in forest, hills, deserts and places difficult to reach. वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पे कि पहुँचना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था, डेजर्ट में, फॉरेस्ट में, हिल्स में. ठीक है. Sometimes they clashed with more powerful caste-based societies. In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. So, these tribes, if suppose any other powerful society attack on them, then they used to get freedom from them and they preserved their separate culture. वो अगर वो उन पे अटैक भी कर देते थे तो भी वो अपना जो सेपरेट कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए वो उनके साथ फाइट वगैरह भी वो कर लिया करते थे. बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स. ट्राइबल सोसाइटी थी और जो कास्ट बेस्ड जो थी वो एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट थी. दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज्ड बोथ सोसाइटीज़ टू चेंज. और इसी वजह से जो सोशल जो सोसाइटी में जो वर्ना सिस्टम था वो उसमें भी चेंजेस आए और जो यहाँ पे ट्राइबल जो सोसाइटी थी उसमें भी चेंजेस आए. नाउ लेट अस डिस्कस हु वर ट्राइबल पीपल. Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. जो हिस्टोरियंस और इनसे बहुत स्केंटी इन्फॉर्मेशन मिलती, बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन. ठीक है. अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स. उनमें कोई वो रिटन रिकॉर्ड्स तो वो लोग तो रखते नहीं थे. ठीक है. जैसे जो दूसरी सोसाइटी थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे, तो उसमें से तो फिर भी जो ब्राह्मण थे वो पढ़ना लिखना जानते थे, तो वो कुछ अपने रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे कि उनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है सोसाइटी में, कैसे रहते हैं वो. तो बट ट्राइबल पीपल के कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स कहीं मिलते नहीं हैं. बट दे प्रिजर्व्ड रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस. बट उनके जो कस्टम थे, उनके रीति रिवाज जो थे या उनकी जो ओरल जो ट्रेडिशन थे वो उन्होंने प्रिजर्व किए. दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन. प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज. तो उनको जो ओरल ट्रेडिशन जो कि ट्राइबल पीपल के जो कहावतें हैं या वो कैसे रहते हैं थे वो उन्हीं के मुंह से जो सुनते हैं, तो इस तरह से वो ट्राइबल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख पाते हैं हिस्टोरियंस. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. The area and influence of a tribe varied at a different points of time. Some powerful tribes controlled large territories. ठीक है, बहुत बड़े एरिया को उन्होंने कंट्रोल कर लिया था जो ट्राइब्स थोड़ी सी पावरफुल थी. इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th century. तो पंजाब में कौन थी? खोखर. तो ये आपको चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है. मैच द कॉलम भी ये क्वेश्चन हो सकता है. सो पंजाब में कौन सी ट्राइब थी? खोखर. आगे और नीचे आएगा तो जहाँ जहाँ जो जो भी ट्राइब थी वो आपको अंडरलाइन करनी है. लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. देयर चीफ कमल खान गखर वॉज मेड अ नोबल मीन्स मनसबदार बाय एम्परर अकबर. सो पंजाब में पहले तो खोखर थी और फिर गखर्स हो गए. इन मुल्तान एंड सिंध द लंगाज एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन बिफोर दे वर सबड्यूटेड बाय द मुगल्स. सबड्यूड मीन्स कंट्रोल्ड बाय मुगल्स. सो मुल्तान और सिंध में पहले तो मुल्तान और सिंध भी इंडिया का ही पार्ट था. अब तो मुल्तान और सिंध जो है वो पाकिस्तान में है, बट पहले ये इंडिया का ही पार्ट था. सो वहाँ पे कौन सी ट्राइब थी? लंगाज एंड अरगुन्स. ठीक है, ये दो ट्राइब्स वहाँ पे थी. देन द बलोचीज वर अनादर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन नॉर्थ वेस्ट. सो बलोचीज नॉर्थ वेस्ट में थे. ठीक है. They were divided into many smaller clans under different chiefs. तो इस ट्राइब में क्या थी? बहुत सारे और सब कास्ट थी. तो वहाँ पे जैसे जैसे
दूसरी सोसाइटी में ब्राह्मण क्षत्रिय इस तरह से जो डिवाइडेड थे, तो यहाँ पे इसमें भी जो बलोचिस थे उसमें वो फर्दर वो जो ट्राइब थी वो डिफरेंट क्लान्स में डिवाइडेड थी, डिफरेंट ग्रुप्स कह लो, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स कह लो सोसाइटी के। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर्ड ट्राइब कॉल गद्दीज, ठीक है। अब वेस्टर्न हिमालय में गद्दीज थे। The distant northeastern part of subcontinent too was entirely dominated by tribes, the Nagas, Ahoms and many others. So, यहाँ पे कौन थे? नॉर्थ ईस्ट पार्ट में नागाज, अहम्स, ठीक है। तो ये आप इस मैप में आप देख सकते हो, ओके, लाइक गखर्स एंड कोकर्स, ये लंगाज एंड अर्गुन्स ये जो थे मुल्तान और सिंध में थे। देन होम्स, नागाज ये यहाँ पे ये ईस्ट में थे, ईस्ट पार्ट में। देन गॉन्ड्स, बैगाज ये यहाँ मिड ऑफ द इंडिया में थे, सेंट्रल पार्ट में। ओके, सो ऑल दीज वर ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, चेरो chiefdoms had emerged by 12th century. चेरो यहाँ पे अलग थे बिहार में। देन राजा मान सिंह कौन थे? अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। ये जो चेरोज ट्राइब थी इनको 1591 में राजा मान सिंह ने डिफीट किया था। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। बट वो एंटायरली वो सबड्यूड नहीं कर पाए, एंटायरली उनको अपने अंडर नहीं कर पाए। Then under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. फिर औरंगज़ेब का जब रूल था तो उन्होंने जो चेरो ट्राइब थी उनके बहुत सारे फोर्ट्रेसेस जो किले थे उनको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था और फिर ट्राइब को टोटली कंट्रोल कर लिया था। द मुंडाज एंड संथाल्स वर among the other important tribe that lived in this region and also in Orissa and Bengal. So उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यहाँ की दूसरी और इम्पॉर्टेंट ट्राइब कौन सी थी? मुंडाज एंड संताल्स। ये आपको नाम ध्यान रखने बिकॉज ये मैच द कॉलम क्वेश्चन बनता है। फिर महाराष्ट्र में देखते हैं कौन सी थी? महाराष्ट्र, हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात में भी थी कोलीज। फर्दर साउथ देर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगाज, देन वेट्राज, मारवाड्स एंड मैनी अदर्स। तो इस तरह से ये सारी ट्राइब थी साउथ इंडिया में। देन द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। बाय द लेट 16th century many of them had become settled agriculturists एंड सम इवन ज़मींदार्स। और बाद में ये ट्राइब में जो थे बहुत जो वेल सेटल्ड ये एग्रीकल्चरिस्ट बन गए और कुछ तो ज़मींदार तक बन गए। मैनी भील क्लान्स नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। और भील के जो और डिफरेंट जो क्लान्स थे उनमें उनके जो डिफरेंट सब पार्ट थे उस सोसाइटी के, उस ट्राइब के, तो वो हंटर गैदरर्स ही रहे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। गॉन्ड्स जो एक ट्राइब थी वो छत्तीसगढ़ में थी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो ये सारी ट्राइब्स आपको ध्यान रखनी कि कौन सी ट्राइब कहाँ थी। देन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कमिंग, हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल मीन्स मोबाइल पीपल मतलब जो घूम के जो रहते हैं, मीन्स दोज हु डू नॉट सेटल डाउन एट वन प्लेस। So this topic we will discuss in our next video. Till then, goodbye. If you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you. God bless you.